The Institute of Chartered Accountants of India has released their much awaited revisionary test paper for November 2020 examination. Now we will be discussing this revisionary test paper. So first of all, what has been provided here is, देखिए क्या कह रहे हैं वो, all questions should be answered on the basis of the position of GST law, which has been amended by the Finance, this number 2 Act 2019, and which have become effective till 30/4/2020, and significant notifications and circulars issued up to 30/4/2020. The GST rates for goods and services mentioned in the various questions are hypothetical, and they may not necessarily be the actual rates leviable on those goods and services. The rates of custom duty are also hypothetical and may not necessarily be the actual rates. Further, GST compensation cess should be ignored in all the questions wherever applicable. तो ये बता रहे हैं कि जो भी हमने GST की रेट्स दी हैं वो हाइपोथेटिकल हैं. अब देखिए, question number 1 to 5 are based on a case scenario given below. So this is a case based study. ये अब क्या बोल रहे हैं, StarCart Limited owns and operates a web portal in the name of StarCart and is registered with the jurisdictional GST authority in Delhi as an electronic commerce operator. The StarCart basically it is registered as an ECO, electronic commerce operator, and is liable to collect tax at source under section 52 of the CGST Act 2017. It is registered where? In Delhi, and it is also liable for collecting. It's liable for collecting tax at source. StarCart provide listing service to various sellers for selling the goods to ultimate consumers. So they are listing those sellers in their website, web portal, and they are charging what? Fees for the same. Besides this, StarCart also sells its own products to the same web portal. On the web portal, they are selling their own products also. So they are acting as an e-commerce operator. Besides this, they are also selling their own products through what? The same web portal. मानी कि वो e-commerce operator जैसे तो एक्ट कर ही रहे हैं और साथ के साथ वो अपने प्रोडक्ट्स भी इस वेब पोर्टल से बेच रहे हैं. For listing services provided to sellers, StarCart charges a listing fees at rate of 10% of turnover of goods sold by seller in a particular month. Whatever goods are sold by a seller, a listing fees is charged at rate of 10% of the turnover. At rate of 10% of the turnover in a of the goods sold by a seller in a particular month. Now here, such listing fees is recovered from the seller irrespective of any return of goods sold through StarCart. So even if the goods are returned, भले इसे माल वापस भी आ गया हो, करना पड़ रहा हो गया हो, तो भी वो लिस्टिंग फीस तो चार्ज करेंगे ही करेंगे. कहने का मतलब क्या है? Such listing fees to be recovered from the seller irrespective of any return of goods sold through StarCart. The customer can choose from wide range of goods listed on the web portal and place online order for goods. तो कस्टमर उस वेब पोर्टल पे लिस्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा. द पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर थ्रू द पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन मोड ओनली. पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट होगा. एट ए टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट, जब मंथली सेटलमेंट होगा, StarCart मेक्स द पेमेंट टू द सेलर्स आफ्टर एडजस्टिंग द TCS एट द एप्लीकेबल रेट्स. बाकी पैसा वो भिजवा देंगे TCS काटने के बाद. द इनवॉइस फॉर गुड्स sold on StarCart is what? Issued by seller in the name of customer. Seller invoice करेगा in name of customer.
ठीक है. And tax is charged on basis of location of seller and customer. Tax will be charged on the basis of location of seller and customer. या IGST लगना है कि CGST लगना है, SGST लगना है, ये इस पे डिपेंडेंट रहेगा. The goods are shipped directly, goods directly ship किए जाएंगे by seller to the customer, and there is no responsibility of shipping the goods on star card for third party sellers. कोई responsibility नहीं है for shipping of the goods on star card for the third party sellers. In case of return of goods by the customer, the shipping is arranged by star card and it charges fees of 20%. यानी अगर रिटर्न होता है तो फिर ये शिपिंग अरेंज करी जाएगी स्टार कार्ड के द्वारा, और 20% ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स जो रिटर्न किए जा रहे हैं एज कैंसलेशन चार्जेस, ये लेगा कैंसलेशन चार्जेस. ये कस्टमर से ले रहे हैं कैंसलेशन चार्जेस, और बैलेंस अमाउंट क्या है, रिफंड कर देंगे. यानी 100 रुपए का अगर माल खरीदा था उसने तो 20 रुपए कैंसलेशन चार्जेस लेंगे और फिर जो अमाउंट है वो रिफंड कर देंगे. फर्दर 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम सेलर. और 10% किससे कलेक्ट किया जाएगा? 20% तो इससे कलेक्ट कर रहे हैं और 10% किससे कलेक्ट कर रहे हैं? सेलर से कलेक्ट कर रहे हैं. इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर बाय स्टार कार्ड एज हैंडलिंग चार्जेस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स. तो दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी. स्टार कार्ड किस तरह से एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, क्या क्या चार्जेस वो चार्ज कर रहे हैं. अब देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन दी है. इन द मंथ ऑफ जनवरी पुलकित, अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टार कार्ड. पुलकित ने ये माल खरीदा: लैपटॉप हैविंग अ वैल्यू ऑफ 50,000 एंड अ प्रिंटर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 10,000. बोथ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम लिमिटेड, a seller of star card. It is a seller listed of star card and registered under GST in the उत्तर प्रदेश. यानी अब लैपटॉप बेचा एक तो उसने 50,000 रुपए का, और प्रिंटर बेचा है 10,000 रुपए का. ठीक है, ये बेचा है. और सेलर कहाँ है? सेलर है यूपी में रजिस्टर्ड, और क्या नाम से, पुलकित कहाँ पे है? राजस्थान में है. उसने ये माल खरीदा है. ठीक है, 50,000 रुपए का तो लैपटॉप खरीदा है, 10,000 का प्रिंटर खरीदा है. और मोबाइल फोन है हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 इज सोल्ड बाय स्टार कार्ड इन इट्स ओन कैपेसिटी. स्टार कार्ड ने खुद की ओन कैपेसिटी में मोबाइल फोन बेचा है. ठीक है, कितने का बेचा है? 30,000 रुपीज का ये मोबाइल फोन बेचा है. सीसीटीवी कैमरा हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख इज सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड, लिस्टेड ऑन अ स्टार कार्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुजरात. गुजरात में ये रजिस्टर्ड है कौन? जो आपका सेलर है सिक्योर वर्ल्ड, और बायर तो राजस्थान में ही पुलकित बायर है. और ये बेचा है सीसीटीवी कैमरा. दिस इज अ सीसीटीवी कैमरा. अबाउट ट्रांजैक्शंस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल. जो भी ट्रांजैक्शंस है ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी फॉर स्टार कार्ड, इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड. तीनों के पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं है, कोई आईटीसी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है. जीएसटी एप्लीकेबल इन अफोरसीड केस सिनेरियो एट द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. सीजीएसटी की रेट 9% है, एसजीएसटी की रेट 9% है, और आईजीएसटी की रेट 18% है. तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, एसजीएसटी इज 9%, एंड आईजीएसटी इज 18%. basis the aforesaid case scenario, say on the basis of the aforesaid case scenario, please answer the following questions. Now they are asking. Now first question is the net tax liability including amount payable as tax collection at source and
आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट्स इफ एनी ऑफ स्टार कार्ड लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। यानी ये पूछ रहे हैं कि जो स्टार कार्ड लिमिटेड है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, उनकी क्या नेट लायबिलिटी आएगी और टीसीएस समेत कितनी क्या इनकी लायबिलिटी आएगी। तो अब देखिए, अपन अगर हम कंप्यूट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ स्टार कार्ड, एक तो इसने क्या है, मोबाइल फोन अपनी ओन कैपेसिटी में बेचा है। मोबाइल फोन बेचा है, कितने का बेचा था मोबाइल फोन? देखिए 30,000 का, 30,000 रुपीज। एंड सिंस द कस्टमर इज इन राजस्थान, एप्लीकेबल विल बी द IGST विल बी लेविड हियर एट रेट ऑफ 18%. Okay, so it is 30,000 into 18%. 5,400 is the IGST, that is the outward liability. अब कितनी लिस्टिंग फीस चार्ज की जा रही है? लिस्टिंग फीस जो ये चार्ज कर रहे हैं, एक तो इसने चार्ज की है किससे? जो आपके इन्फोकॉम से, इन्फोकॉम से लिस्टिंग फीस चार्ज करेगा। कितनी थी लिस्टिंग फीस? 10% ऑफ टर्नओवर है। देखिए लिस्टिंग फीस ऊपर आ रही थी, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय सेलर। तो 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कितना है इसका इन्फोकॉम का? 10% टर्नओवर 60,000 का, ये लिस्टिंग फीस चार्ज की जा रही है 6,000। इस पे भी 18% की रेट से IGST लगेगा, यानी 6,000 इंटू 18%, 4880, 4800, 4800, 6,000 into 18%. Sorry. It is 1080. It's not calculation. It is what? 1080. And TCS will also be there at rate of 1% of the goods sold. 60,000 का माल बेचा है, 60,000 का माल बेचा है, तो 1% TCS हो जाएगा कितना? 600 रुपये। 600 रुपये TCS। ये TCS होएगा, ये इसकी GST की लायबिलिटी आ रही है लिस्टिंग फीस पे। उसके अलावा एक आ रही है आपके किसकी? दैट इज ऑफ जो सिक्योर वर्ल्ड है। सिक्योर वर्ल्ड की देखिए, 1 लाख का माल बेचा है, लिस्टिंग फीस चार्ज की है 10% की रेट से, यानी 10,000 रुपये। उस पर 18% की रेट से GST लायबिलिटी आ जाएगी 1,800 रुपये। ये भी IGST चार्ज किया जाएगा, बिकॉज द रेसिपिएंट हियर इज इन गुजरात। एंड देन TCS विल बी हाउ मच? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। 1 लाख का 1% की रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा 1,000 रुपये। एक तो 1,000 ये आ गई, 1,800 आ गई, 5,400 आ गए, 1080 आ गया और 600 आ गए। तो कुल लायबिलिटी देखें, 1,800 प्लस 1,000 प्लस 5,400, सारे IGST हैं ये, प्लस 1080 प्लस 600, तो ये आ गई आपकी 9,880। 9,880 is including what? The TCS, that is including TCS. Including TCS. IGST लग रहा है हर सिचुएशन के अंदर। तो पहली बात तो ये पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चन में, तो ये पूछा कि नेट टैक्स लायबिलिटी आप निकालिए स्टार कार्ड की। तो ये नेट टैक्स लायबिलिटी इसकी निकल के आ रही है, एक तो खुद की सेल के रिलेशन में जिसने मोबाइल फोन बेचा है, उसके अलावा जो दूसरों का माल बेचा है जिसका टर्नओवर एक का 1 लाख है, 10% की रेट से टर्नओवर फीस चार्ज की गई है,
उस पर 18% की IGST की लायबिलिटी आएगी। दूसरे का 60,000 का माल बेचा है, उसकी टर्नओवर फीस पे 18% की रेट से क्या है जो लायबिलिटी आएगी। उसके अलावा TCS हो जाएगा एक 60,000 का और एक 1,00,000 का 1% की रेट से। तो ये IGST लायबिलिटी आ गई 9880। फिर देखिए नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट्स इफ एनी ऑफ इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब देखिए इन्फोकॉम ने माल बेचा है, इन्फोकॉम ने माल बेचा है कितने का, 60,000 का। IGST लगेगा 18% की रेट से IGST लगेगा। 60,000 का 18% की रेट से IGST लगेगा 10,800 ये चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। TCS इसका ऑलरेडी हो चुका है। TCS कितना हो चुका है देखिए 600 TCS हो चुका है। 10,200 ये 10,200 आ गया। और इसने ये इनपुट सर्विसेज अवेल करी हैं। इनपुट सर्विसेज जिसका इसको ITC मिल रहा है, ITC इसको कितना मिल रहा है, जितना स्टार कार्ड ने इनसे लिस्टिंग फीस चार्ज की है माल बेचने के रिलेशन में, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इसको 1080 का ITC मिल जाएगा। तो कितना हो गया ये देखिए 10,200 माइनस 1080 दैट इज 9120। एक तरह से ये 9120 ये इसकी लायबिलिटी आ जाएगी। ये किसकी आ रही है, इन्फोकॉम की। अब आती है बात किसकी, नेक्स्ट है जो सिक्योर वर्ल्ड की। सिक्योर वर्ल्ड ने कितने का माल बेचा है देखिए, जो राजस्थान के कस्टमर को सिक्योर वर्ल्ड ने 1,00,000 का माल बेचा है। 1,00,000 का माल बेचा है 18% की रेट से 18,000 रुपए का IGST चार्ज कर रहा है। TCS हो चुका है कितना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, हाउ मच TCS इज देयर। एक TCS हो गया है अपने 1,800 रुपए का, और एक इससे जो लिस्टिंग फीस चार्ज की गई है उस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिलेगा, लिस्टिंग फीस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए लिस्टिंग फीस चार्ज की गई है 10,000 रुपये, 18% की रेट से बिल करा है स्टार कार्ड ने इसको, तो 1,800 रुपये का। तो ये TCS 1,000 रुपये का, सॉरी TCS हुआ है 1,000 का, और लिस्टिंग फीस हुई है 1,800 का इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो 1,000 का TCS और 1,800 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इसकी लायबिलिटी आ जाएगी 18,000 माइनस 1,800 ITC के रिलेशन में, और 1,000 का जो TCS हुआ है 15,200। ये लायबिलिटी आ जाएगी सिक्योर की वर्ल्ड की। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ GST, दैट इज 9120 इज IGST एंड 15,200 इज IGST। अब देखिए in case it is assumed that secure world's turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration। अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई करता है गुड्स ECO के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वे ECO इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, तो फिर क्या होएगा, सप्लायर ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू obtain मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसको क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इन केस इट इज अज्यूम्ड दैट सिक्योर वर्ल्ड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर obtaining registration applicable under GST law, सिक्योर वर्ल्ड शेल डिस्चार्ज टैक्स ओनली ऑन सेल्स मेड थ्रू स्टार कार्ड। ये गलत है। अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर सभी जितनी भी माल बेचा जाएगा उस पर GST चार्ज करेगा। सिक्योर वर्ल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू obtain registration as threshold limit for obtaining registration is not crossed and no tax is payable। ये भी सही नहीं है। स्टार कार्ड इज लायबल टू डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑन सेल्स मेड बाय व्हाट, सिक्योर वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
Secure world is required to obtain registration and shall be liable to pay tax on all taxable supplies made through StarCart as well as on owns. Once he is required to get registered, then GST is to be charged on all the supplies. So the answer is D in this case. थर्ड का D आंसर होगा. अब देखिए आगे क्या बोलते हैं. Assuming that Pulkit returns the printer purchased from Infocom in the month of January. पुलकित ने वो प्रिंटर रिटर्न कर दिया. एज पर रिटर्न पॉलिसी StarCart चार्जेस 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज कैंसिलेशन चार्जेस फ्रॉम पुलकित एंड 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज हैंडलिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फोकॉम. अब ये कह रहा है द नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट पेएबल ऑफ TCS आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट्स ऑफ 10 कार्ड इन सच अ सिनेरियो वुड इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो अब देखिए जब प्रिंटर सेल रिटर्न भी हो रही है, प्रिंटर का रिटर्न हो रहा है, तो ये मांग रहे हैं StarCart की लायबिलिटी. तो लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वो लायबिलिटी जो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में निकल के आई थी वो आ रही थी 9880 इंक्लूडिंग TCS. 9880 इंक्लूडिंग TCS आ रही थी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में. ओवरऑल लायबिलिटी आ रही थी ना StarCart की, ये 9880 आ रही थी इंक्लूडिंग TCS. ठीक है. तो अब इसमें हमारे जो ये चार्ज करेगा कस्टमर से, यानी जिसने माल खरीदा है उससे चार्ज कर रहा है 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंटर. तो ये प्रिंटर की वैल्यू कितनी थी 10,000 की, तो 10,000 का 20% ये चार्ज कर रहा है एक, यानी 2,000 पे 18% की GST की लायबिलिटी आ जाएगी. 2,000 का 18% 360. और एक ये उससे भी चार्ज कर रहा है अपने सेलर से, इन्फोकॉम से चार्ज कर रहा है. ये तो पुलकित से चार्ज किया है, उसकी लायबिलिटी आई है. इन्फोकॉम से कितना चार्ज किया? 10,000 का 10%, यानी 1,000 रुपये. 1,000 रुपये पे 18% ये लायबिलिटी आ जाएगी 180. पर TCS कितना अमाउंट कम हो जाएगा? 10,000 का 1% TCS वहां किया था वो अब कम नहीं करना. तो लायबिलिटी ऑन अकाउंट रिड्यूस्ड, TCS लायबिलिटी जो रिड्यूस हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंटर, कितनी रिड्यूस हो गई? 100 रुपए की ये रिड्यूस हो गई. तो ओवरऑल लायबिलिटी देखिए 9,880 प्लस 360 प्लस 180 माइनस TCS कम हो गया 100 रुपये. तो कितना हो जाएगा? 10,320 यहाँ लायबिलिटी आ जाएगी. 10,320 दैट इज 9880 प्लस ये लायबिलिटी बढ़ गई 360 की जो चार्ज करा है अपने कस्टमर से. 180 रुपये इससे चार्ज कर रहा है और 100 रुपये TCS का अमाउंट कम हो जाएगा. क्योंकि ये बोल रहे हैं, देखिए ऊपर ये बोल रहा है कि लिस्टिंग फीस तो चार्ज करी ही जाएगी. यहाँ देखिए लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर irrespective of any goods return of goods sold through StarCart. तो ये मत सोचिएगा लिस्टिंग फीस कम हो जाएगी 10,000 का 10% इनिशियल, वो रहेगी. उसके अलावा ये एडिशनल लायबिलिटी हो जाएगी. तो ये कितनी आ जाएगी? 10,320 रुपये की लायबिलिटी आ जाएगी. नाउ StarCart प्रोवाइड्स फ्री गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2,000 टू पुलकित ऑन January 31st which can be redeemed against any purchases of goods made in future on StarCart. The supply of voucher in hands of StarCart would become, तो अगर अपन सप्लाई ऑफ वाउचर्स करते हैं तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है? जो भी आपके वाउचर क्या वर्थ का है उतने गुड्स वो रिडीम करा सकता है. तो ये वाउचर वर्थ है 2,000 का, तो 2,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है. 2,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू. और ये फ्यूचर में
किन्हीं भी गुड्स के लिए रिडीम किया जा सकता है अगेंस्ट एनी परचेजेस। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में कब आता है? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो जो भी ये गुड्स रिडीम किए जाएंगे उस समय जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो टैक्सेबल वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी इसके केस में? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 2000 रुपए। इट विल बी लायबल टू जीएसटी इन द मंथ इन विच द वाउचर इज रिडीम्ड बाय पुलकित। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2000 जनवरी के महीने में तो आएगी नहीं, ये नंबर बी रहेगा इसका। डिस्काउंट ऑफर्ड टू पुलकित ऑन परचेजेस मेड इन मंथ ऑफ जनवरी एंड नो टैक्स वुड बी पेएबल ऑन वाउचर। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी जब माल खरीदेगा पुलकित उस वाउचर के अगेंस्ट में, तब लायबिलिटी अराइज हो रही है। डिस्काउंट ऑफर्ड टू पुलकित एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर एंड नो टैक्स वुड बी पेएबल ऑन सच वाउचर। ये दोनों सिचुएशंस नहीं है। बेसिक फंडामेंटल थिंग क्या है? वाउचर जो आप दे रहे हैं विच आर रिडीम्ड अगेंस्ट एनी गुड्स लेंगे तो जितनी भी वैल्यू ऑफ वाउचर है उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो रही है जब वो वाउचर रिडीम होगा उसमें। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केस बेस्ड स्टडी था जो अभी अपन ने क्या है इसके रिलेशन में पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर माल जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से बेच रहे हैं उनकी जीएसटी की लायबिलिटी और क्या जीएसटी चार्ज किया जाएगा, टीसीएस की लायबिलिटी, सारे मतलब कंसेप्ट को लेके ये क्वेश्चन बनाया है। तो एक बार इसको आप अच्छी से गो थ्रू कर लीजिएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन विच हैज बीन फ्रेम्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये पहला केस बेस्ड स्टडी अपन ने क्या है इसका डिस्कशन किया।